I'll send it to you so you can review it anytime you want. Okay, so Okay. so I'll just quickly start with what is integration. So integration is also called as antiderivative. Okay, integration is also called as antiderivative. Okay. What is antiderivative? Antiderivative का मतलब होता है to go back और तुमचा and आवाज कट होता है. join whatever you had disintegrated. समझा क्या? So ये फंक्शन है. Okay. डेरिवेटिव क्या करता है? Okay. फंक्शन को छोटे छोटे पीसेस में कट करता है. ओके, सो दिस इज वन पीस. उसको हम लोग बोलते हैं dx. ओके, दैट Okay. इज सो दैट इज डेरिवेटिव. अभी एंटी डेरिवेटिव क्या करता है? एग्जैक्ट उल्टा. ये जो छोटे छोटे पीसेस है ना, उसको ज्वाइन करने का कोशिश करता है. ओके, अब उसको कैसा पता कि ये पार्ट जो है उसके बाद ऐसा आएगा पार्ट? सो दैट डिपेंड्स अपॉन द फंक्शन. फंक्शन उसको बताता है कि कैसे छोटे छोटे पार्ट्स है उनको तुमको ज्वाइन करना है. तो वो पहले ऐसे सब पार्ट्स को लेता है और फिर Right. उनको ज्वाइन करता है, एक स्टिचिंग टाइप, So integration is called as the Okay. inverse, not inverse, but it is called as the sort of inverse of derivative. Okay, duality, dual होता है वो. Clear? Okay. Yeah. Yes. Derivative क्या होता है? You know what is derivative? To find the slope of a line. Slope. Last Yes. lecture में Slope बताया of था a line. applications of derivative में what is derivative. Antiderivative is exactly opposite to that. Going, Yeah. मैंने बताया था ना. So derivative क्या रहता है कि आप इस कर्व से इस tangent पे जा रहे हो. Remember? मैंने बताया था. So if you Right. have a curve Yes. Yes. and if you are taking its derivative, so you are actually trying to figure out कि उनकी उसकी जो tangents है वो tangents क्या कर रही है, यानी कि slope उस function का at every point Yes. that you can easily find out using derivative. Anti-derivative उल्टा करता है, वापस उस slope से आपको उस main curve पे लेके आता है. The function, the original function, it gives you back the original function. Okay. Okay, so if you say that if Okay. y is equal to f of x is my function, then dy by dx is f dash of x. That is the derivative of this function y, dependent variable y. Okay, now if you keep dy over here, और ये जो dx है, dx क्या होता है? Small part of this function. Okay, some small part. अगर मैं उसको लेके Okay. वहां पे लेके जाता हूँ, f dash of x dx करता हूँ. Okay, so and if I integrate on both sides, so मुझे क्या मिलेगा? Integration dy, integration f of x dx. I will F get of back to X. the original Yeah. function. Yes. What is the integration of y dy? It is y. And what is the Y. integration of the derivative? It is the original function, that is f of x. So integration works Okay. like this. Okay, so अगर आपके पास derivative है किसी Okay. function का dy by dx, where y is equal to f of x, then using dy by dx, you can once again get back to your original function. For example, अगर if you know that x square का derivative d by dx of x square is equal to 2x. Right. Okay, then you can say that dx, अगर मैं dx को वहां पे लेके जाता हूँ, so d of x square is equal to 2x dx. Dx. Now if Yes. you integrate on both sides, if you integrate this, so integration dx square, one second, और यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करता हूँ मैं. Okay, so what will you get? You'll get original function back. तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? Yes. यहाँ पर आपको मिलेगा x square and you will get back 2x. 2x का इंटीग्रल 2x इधर, x square upon 2 cut. You will get x square is equal to x square, यानी कि you will get y is equal to x square. क्या था आपका? y था ना original function. So you will get Right. y is equal to x square. Right. समझ में आया? इक्वल हो गया ना, दोनों फंक्शंस इक्वल हो गए, दोनों साइड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गए. Which means you have found the derivative, which means you have done the integration. So integration क्या करता है? कहाँ गया? Integration क्या करता है? Integration once again gives you back your derivative.
सो दिस वे यू कैन डू, तो आप क्या कर सकते हो, साइन एक्स जिसका भी डेरिवेटिव है, सो फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ, ये आपको पता होगा, ये आपने किया भी होगा, डी वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स is equal to, we know that derivative of x is equal to 1, right? So same Yes. तरीके से उधर लेके जाओ, so you will say that, you can say that dx will be equal to 1 into dx, 1 into and if you dx. integrate on both sides क्या मिलेगा, you will get integration of 1, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है ना, 1, तो integration of 1 dx is equal to, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब क्या है, integration of 1 dx is equal to x. ओके, समझ में आया? dx को डेरिवेट इंटीग्रेट हाँ, किया ना, तो ये इंटीग्रल और डी कट हो गया, क्या बचता है, सिर्फ x. x. सो इंटीग्रेशन, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब यहाँ पे 1 है, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज इक्वल टू x. लाइकवाइज जिसका भी डेरिवेटिव आपको मिलता है, जैसे सो वी नो दैट डी बाई डी एक्स, अब भी किया हम लोगों ने, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x. इसका मतलब इंटीग्रल 2x dx, dx को वहां पे लेके गया और इंटीग्रल निकाला तो मुझे ये मिलेगा, इंटीग्रल 2x dx. ये यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दिया था मैंने, गलत किया था, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर आना चाहिए ना, 2x आना चाहिए. 1 सेकेंड, सॉरी ये. तो यहाँ पर भी वही इंटीग्रल, ये dx को वहां पे लेके गया तो क्या हो जाएगा, 2x. सो d ऑफ एक्स स्क्वायर इज इंटीग्रल 2x dx, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि जो आपका ओरिजिनल फंक्शन है एक्स स्क्वायर, उसको अगर मैं इंटीग्रल निकालेगा, इधर भी इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव, जैसे यहाँ पे इंटीग्रल और डेरिवेटिव कट हो गया, वैसे यहाँ पर भी इंटीग्रल और डेरिवेटिव कट हो गया, तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2x, तो ये 2 को मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ. सो इंटीग्रेशन ऑफ x dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 2. समझ में आया? ये किया होगा ना, ये लास्ट ईयर आई थिंक, ये एकदम ही बेसिक है. सो किसी भी चीज का आपको डेरिवेटिव पता होगा तो ऑपोजिट होता है उसका इंटीग्रल. एक्स रेस टू एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1, राइट? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज एन इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1. देन व्हाट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन, that will be not integration of x raised to n, sorry, integration of n into x raised to n minus 1, that will be x raised to हेलो n. अच्छा चला गया था क्या वॉइस मेरा, हेलो, हेलो मेरा वॉइस चला गया था क्या, हेलो सारा, हेलो 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 सारा, यू आर एम आई ऑडिबल, आपका आवाज आ रहा है मुझको, I'll just हेलो, rejoin just a minute. या श्योर. हेलो आवाज आ रहा है, मेरा आवाज आ रहा है, yes now I can hear. हाँ ओके. सो आई वाज सेइंग कि किसी भी फंक्शन का अगर आपको डेरिवेटिव पता है, तो उस डेरिवेटिव को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा, आई विल गेट माई फंक्शन बैक. सो व्हाट आई function. सेड, व्हाट आई वाज सेइंग इज, अगर इफ यू नो दैट
डी बाई डी एक्स या डेरिवेटिव ऑफ n into x raised to n minus, sorry, derivative of x raised to n is what? It is n times n into x raised to n minus n 1. minus 1. So इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसको अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे वापस क्या मिलेगा? मेरा ओरिजिनल फंक्शन मिलेगा. X raised to. Yes. Okay, so let us Okay. write ऐसा एक चार्ट बना देते हैं so that you will remember, because इंटीग्रेशन का इशू क्या है? Why many people find integration challenging is derivative ka we know fundamentals. You know how to find out derivative. Okay, it is a primitive, like Yes. you know the primitive definition of derivative, so you can find derivative or slope of any function. But integration का ऐसा नहीं है. Integration Yes. is anti-derivative. Integration क्या होता है? Integration is Yes. anti-derivative. Antiderivative. अब एंटी-डेरिवेटिव का प्रॉब्लम ऐसा है ना कि डेरिवेटिव ढूंढना आसान हो जाता है, बट एंटी डेरिवेटिव के लिए देयर इज नो फिक्स हार्ड एंड फास्ट रूल या फिर ऐसा डायरेक्ट थियरम्स ऐसे नहीं है. You have to deduce those theorems. You have to find methods to simplify those functions and find out its antiderivative. समझ में आ रहा है क्या? हाँ. जैसे Yes. मुझे पता है कि log x, आपको log x का डेरिवेटिव पता है? Log x is 1 upon x. What is the derivative of log x? 1 upon x. Right. So Hello. if hello, Yes, yes, yes. hello. Hello. So log x का डेरिवेटिव क्या है? 1 upon x. 1 by x. So अगर मेरा फंक्शन 1 by x है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? उल्टा, log x. Log x. ठीक है, तो log x का डेरिवेटिव अगर मुझे पता है तो उसका मैं आराम से एंटी डेरिवेटिव निकाल सकता हूं. लेकिन अगर Right. मुझे log x का इंटीग्रल निकालने को बोलेगा, then there is no direct way of finding that. Okay. समझ में आ रहा है क्या? सो डेरिवेटिव हाँ. जिसका निकलता है, यानी कि अगर डेरिवेटिव मतलब मैंने क्या बोला? डेरिवेटिव इज नथिंग बट स्लोप. तो स्लोप जिस फंक्शन का निकलता है उसका इंटीग्रेशन ढूंढना बहुत आसान है. Okay. Okay. मतलब स्लोप को इंटीग्रेट करोगे तो आपको फंक्शन वापस मिलेगा, लेकिन जिस फंक्शन का आप स्लोप निकाल रहे हो उसको स्लोप समझ के उसका इंटीग्रेशन निकालना इज वेरी डिफिकल्ट. अगर मैं बोलता हूं आई वांट टू फाइंड आउट इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx, अगर ऐसा बोलता हूं मैं, then I know what is 1 by x. 1 by x is the derivative of log x. So it is very easy to find out the integration of 1 by x dx, which is log x plus c, which is actually you are integrating the slope. 1 by x is the slope of log x. You are actually Yes. integrating the slope and you are getting log x back. But you cannot find, you can find, but it is difficult to find integration of log x. Directly ऐसा नहीं है, because log x directly किसी का slope नहीं है. You have to find it. You have to find the original function. Okay. Are you getting it? ये जो 1 by x है ना, ये किसी का तो slope था. किसका slope था? log x का. log x का डेरिवेटिव 1 by x है, मतलब d by dx. डेरिवेटिव क्या होता है? स्लोप. Slope. तो log x का स्लोप 1 by x है, यानी कि 1 by x का इंटीग्रेशन log x, यानी कि स्लोप का इंटीग्रेशन वापस log x आया. सिंपल है. Log x. लेकिन ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव log x है, यानी कि स्लोप log x है? वो फंक्शन हमको हमारे पास डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, प्राइमरी फंक्शन नहीं है. सो यू विल हैव टू फाइंड दैट फंक्शन. So there is no direct way of finding the antiderivative. You have to use different methods. Okay? Okay. So you have
3 methods of finding out integration. आपके syllabus में there are 3 methods to find out integration. कौन से 3 methods हैं integration के? So that brings us to the topic of methods of integration. To the topic of methods of Integration. What are those methods? First method is the method of substitution. Method of substitution. मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में बताता हूँ वो क्या है, एंड देन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसमें इस हर एक मेथड को we will dissect it properly and then we'll solve it. First method is method of substitution. Second is method of partial fractions expansion. Okay. Method of partial fraction expansion. And the most important method, probably the most important from the point of view of engineering, is method of integration by parts. Okay, these three are very, very important methods of integration. Okay, substitution method जो है ना, it is very simple. Substitution में आपको क्या होता है ना, आपको एक चीज को दूसरे चीज से आपको उसका डेरिवेटिव देखना है. So मोस्टली मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, आपको ऐसे फंक्शंस दिए रहते हैं जिनका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर डायरेक्टली उसी फंक्शन में रहता है. जैसे अगर मेरा फंक्शन है cos x डिवाइडेड बाय sin x, ये मेरा फंक्शन है. अब मुझे इसका इंटीग्रल ढूंढना है. सो मैं ऐसा लिखता हूं, लेट अस से दैट i इज इक्वल टू cos x बाय sin x. अब मुझे इसका इंटीग्रल ढूंढना है. सो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ cos x बाय sin x dx. ओके, अब इसका इंटीग्रेशन ढूंढने के लिए कैसे कर सकते हो ना, मैंने क्या बोला था, डायरेक्टली डेरिवेटिव्स के जैसा डायरेक्ट नहीं है, सिंप्लीफाई करना पड़ता है, थोड़ा सोचना पड़ता है इंटीग्रेशन के लिए. सो इफ यू सी, यू कैन यूज डेरिवेटिव्स. यू नो दैट cos x का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स. ओके, एंड sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x. सो लेट अस, तो हम क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं. हम sin x को एक नया वेरिएबल लेते हैं, डमी वेरिएबल t. ओके, ये मिलने के बाद हम क्या करते हैं, sin x का डेरिवेटिव दोनों साइड पे डेरिवेटिव लगा देते हैं. सो इफ sin x इज इक्वल टू c, देन sin x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, विल टेक डेरिवेटिव्स ऑन बोथ साइड्स. तो डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स मतलब आई विल डू लाइक दिस, sin x का मैं डेरिवेटिव निकालूंगा. सिमिलरली यहां पर t का भी मैं डेरिवेटिव निकालूंगा. या तो आप ऐसे करो, या बहुत कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसा कि दोनों साइड पे डी लगाया मतलब क्या किया. सो एक्चुअली क्या करना होता है, दोनों साइड पे डेरिवेटिव करना होता है. जो नया वेरिएबल आप ले रहे हो ना, उस नए वेरिएबल के साथ डिफरेंशिएट करने का. सो यू एक्चुअली डू लाइक दिस, डी बाय dt. Okay. तो यहां पर भी dt आएगा, डी बाय dt. समझे, इससे क्या होता है, Yes. Yes. ये dt बाई dt कट हो जाता है. डेरिवेटिव ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t कितना आता है, 1. 1. And what is derivative of sin x? It is cos x. But यहाँ पे वेरिएबल x है और डिफरेंशिएट किससे कर रहे हैं, cos x t से डेरिवेटिव कर रहे हैं. तो यहाँ पे आएगा dx बाय dt. Okay. एंड राइट हैंड साइड पे क्या आ गया, 1. अब इस dt को वहां पे लेके जाओ, एंड यू विल फाइनली गेट cos x dx is equal to dt.
अभी dt. इतने सारे स्टेप्स करने से बेहतर है, इट इज बेटर टू जस्ट डेरिवेट अप्लाई डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स। तो ये ऐसा करने से अच्छा मैं क्या लिखता हूँ, rather than doing this what I do is we take derivative on both sides। so Both ऐसा sides. लिखते हैं हम लोग, d sin x is equal to dt। dt. so derivative of sin x क्या होता है, cos Cos x, एंड उसके बाद में आप लिख देते हो dx। dx. एंड राइट हैंड साइड पे क्या आता है, dt का डेरिवेटिव dt रहता है। dt. ओके, so when you get proper practice then you can directly write down this। अगर नहीं तो मैंने जो स्टेप्स बताया ना, दोनों साइड पे डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टी एंड देन यू कैन रीच दिस स्टेप। ओके, Okay. सो आप पे डिपेंड करता है। एनीवेज, तो ये सिंपल मेथड यूज करके हम क्या करते हैं, नाउ वी हैव द सब्स्टिट्यूशन। सो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, पता है, हम लोग साइन एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं। t. हम्म. सो ये जो साइन एक्स है इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, टी t. डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में cos x इंटू डी एक्स डायरेक्टली हमने क्या किया है, cos x dx Cos निकाला है, उसका वैल्यू क्या है, dt. dt. सो इट बिकम्स dt अपॉन टी। और ये इंटीग्रेशन एज यूजुअल जैसा था वैसा। और अभी मैंने बताया था आपको कि दिस इज, अभी मैंने क्या किया, डेरिवेटिव x की जगह पे आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू अ न्यू डेरिवेटिव, आई हैव ट्रांसफॉर्म्ड Yes. इट इनटू अ न्यू डेरिवेटिव व्हिच इज dt। ओके, Hmm. और उसका इंटीग्रल कर रहा हूं मैं। सो वी नो व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ वन बाय इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टी। वन बाय टी किसका स्लोप है, उतना ही ढूंढना है आपको। अभी बताया था log x का By डेरिवेटिव t. वन बाय एक्स है, यानी कि वन बाय एक्स। Log t. यस, सो वन बाय एक्स किसका स्लोप है, log x Log. का स्लोप है। Log t. तो यहाँ पर Log है. वन बाय टी किसका स्लोप रहेगा, 1/2 log t का. log t का रहेगा। समझ में आया, सो वन बाय टी किसका हाँ. रहेगा,